So, hey guys, welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here, and today we are going to start a new series. तो आप लोगों का जेई मेन फोर्थ अटेम्प्ट जो है, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर मैनी एस्पिरेंट्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिवीजन सीरीज फॉर दोज पीपल. तो जैसे ही आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन. For that, okay, we're going to revise. And how will be our revision pursuing? Let me just give you a gist of that. See, I'll be giving you all the formula and the related concepts. I will not spend much time on theory. That is the major perspective. I won't spend much time on theory. I'll focus more on problem solving. ऑल्दो इन ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे ही मैं करा चुका हूँ अपने चैनल पे. यू कैन सी अराउंड 3 to 4 वीडियोस आर स्पेशली ओरिएंटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडिंग अ 2 hour सेशन. So for trigonometry portion, I thought that we can start with basic because I think अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं YouTube पे, जब आप पढ़ रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने वो सेशंस देखे होंगे. ठीक है, जब आपने प्रिपेयर किया होगा आपने वो सेशंस देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं, यू कैन वॉच देम एनी टाइम. ठीक है, आई हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इस वीडियो में आई हैव टेकन सम न्यू प्रॉब्लम्स. एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यू हैव गिवन 3 attempts अप्रोक्सीमेटली. ओके, मेनी ऑफ यू हैव गिवन 3 attempts. लाइक अब हमारे पास बस 27 जुलाई, दैट इज टुमारो, वी हैव एन अटेम्प्ट. ओके, so about those people who are having an attempt tomorrow, best of luck first of all. And ठीक है, apart from those guys, they can watch this video later if anybody falls in that category. And in this series what we are going to do is we are going to minimize some of the theory. We will just revise the theory, we'll just give a gist of theory, and we'll solve some 5 6 or 7 8 problems. And that will make our concepts much clear. And we'll continue this for the next 2 to 3 weeks before your next exam. And I'll give some gap for you for preparing for the final attempt, that is the fourth attempt. So that's why I'm starting this series right now, today itself. I could have started it 1 or 2 days later, but yes, I have to complete it on time so that you guys are benefited. Okay, so on that note, I think I've gone too far about it, and we'll be continuing our discussion on this perspective. Okay, so I think we can start with today's lecture. So today we are going to learn about trigonometry. We are going to just revise what are the basic concepts that are involved in trigonometric ratios and identities and trigonometric equations. Okay, so this is one of the very important lectures, and you must definitely follow this lecture very thoroughly. Okay, let's start. So first of all, this is a very simple concept that everyone must know, that how to interchange the angle measurements. I just taken this for sake of completion, that we must remember that pi radian is equal to 180 degree, and that's it. This is somewhat, and for the approximation purpose, you can remember that it is around 57-58 degrees, और for a rough approximation आप उसे 60 degrees भी ले सकते हैं. ठीक है, and I'm not going into much details right now. We can continue further. Okay, सो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दी गई हैं कि भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है. तो देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है भैया, 1 होता है. ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो जो बहुत सारे लोगों को याद होगा, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1. और यहाँ पर ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल आया हुआ है, जेई में बहुत बार आया हुआ है. ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा मैं कह देता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन you guys can remember it, that I don't wish to write these things, but yes, what you need to take out from this, ठीक है, you remember this. What you must remember is that if हमारे पास कहीं पे भी whenever we are given sec theta minus tan theta or sec theta plus tan theta that is equal to some value,
then you can definitely find sec theta and tan theta. And how you can find, because you know that this is equal to 1, you can find sec theta plus tan theta, that will be equal to 1 by k. So you can add these two to get sec theta, and you can subtract these two to get tan theta. Okay, and you can find that value accordingly. This is a very simple thing to do, and I don't think that there is any need for further explanation over this thing. Okay, what we can do is we can just simply solve a problem on this, and yes, we will be clear. So for example, अगर हमें कभी भी sec theta minus tan theta, let's say हमें 3 दिया गया है, ठीक है, या 2 दिया गया है, और sec theta प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है, लेट्स से दैट इज, तो हमें क्या बताना है, हमें tan थीटा का वैल्यू बताने का है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हाफ होगा। ओके, सो लेट्स सी, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ले लेते हैं, तो -2 tan थीटा, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो 1 - 2 कर रहा हूँ, तो -2 tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/2, ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/4, ठीक है। तो सेक थीटा देखो, ये याद रखना, सेक थीटा हमेशा 1 से ग्रेटर रहता है, तो वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये आपको डेफिनेटली चेक करना है। तो दैट इज 5/4, यस, ग्रेटर देन 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज वेल एंड गुड, वी आर on a good note, this is quite good. Okay, so this was one of the things that you guys must know. Now let us move ahead. So this is some various angle measurements that you guys have to remember, that 2n theta, 2n pi plus theta is equal to sin theta, or cos 2n is equal to cos theta. This you must remember. I don't think that this is anything that is very harsh to remember, or you can't remember it. Okay, for this thing you must remember that all, जैसे हमारे पास वर्टिकल पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक तो ये याद रखना है, ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑफ कोर्स आपके ऊपर लागू होता है, तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास साइन एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइन और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोसेक होता है, तो ये पॉजिटिव रहते हैं। इधर हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास ए है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर हमारा थीटा लेट से कोई एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट वुड एक्चुअली डिपेंड। ओके, बट जनरली जो ये कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्यूट एंगल पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज मेंस हैज़ बीन वेरी डायरेक्ट. I have been watching the trend of papers now, and the mains examination has been very direct in asking the questions. So I'll just go direct into theory. I will not deep dive into the theory now. ठीक है, and moreover, if I deep dive into theory, that is of no use actually. ठीक है, so meanwhile let us continue. जैसे हम साइन ऑफ माइनस थीटा देखें, तो ये इधर कहीं होगा, तो इधर कॉस हमारा पॉजिटिव है, साइन हमारा नेगेटिव है, ठीक है, उसको छोड़ के तो कॉस हमारा पॉजिटिव आ गया, साइन नेगेटिव के साथ खुल गया, तो ऐसे आ गया साइन 90। अच्छा, वर्टिकल, हाँ ये बात रहेगी बतानी कि वर्टिकल के अबाउट हमारा टी रेशो चेंज हो जाता है जब हम वर्टिकल के अबाउट देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल के अबाउट टी रेशो सेम रहता है, बस उसका साइन चेंज कर सकते हैं, एंड दैट टू इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, मतलब जैसे, एंड दिस कंडीशंस, द साइन कंडीशंस, SIGN वाला साइन की बात कर रहा हूँ, तो दैट विल फॉलो फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो सभी को पता होगा यार, I don't think that you guys must be told how this comes or how is it derived, ठीक है, because that is of no use to you guys, ठीक है। I wish to save your time and nothing else. Okay, so what I can do the best possible way is, I will just make the PDF and share it to you guys, okay, and you can check. Okay, so that would be better for you, and for these basic things, because I don't know why if somebody is not clear with the basics, how would he appear in a mains exam? Okay, so that is the entire perspective, but more or less these things are quite same, and you guys are quite intelligent enough to understand how these things work, because you have started. Okay, so what you need to remember, sin of n pi 0, very important, ठीक है, n pi का हर मल्टीपल पे साइन का वैल्यू 0 होता है। cos of n pi will depend on n, कि अगर n odd है, तो यहाँ पर जैसे cos 3 pi है, तो 3 pi will be -1, cos 0 है, तो वो 0 pi हो गया, तो that will be 1,
एंड cos ऑफ पाई देख लो तो दैट विल बी -1. तो हाउ डज इट डिपेंड, आई जस्ट शो यू ऑन अ यूनिट सर्कल. हमने बहुत ही पहले डिस्कस किया था कि साइन थीटा का मतलब होता है क्या, यूनिट सर्कल पे परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट, टू द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय द थीटा. ठीक है, एंड cos थीटा का वैल्यू होता है, cos थीटा का मीनिंग होता है बेस. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जज. ऑफ कोर्स हमें पता है कि दिस वैल्यू विल नेवर बी जीरो, सो tan n pi क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो. एंड हाउ इज इट इक्वल टू जीरो, बिकॉज sin n pi अपॉन cos n pi is some 0 upon some finite quantity, and that will be definitely 0. So I don't think that and I think that these things are clear to you. Okay, so let us discuss about 2n plus 1 pi by 2. So the things would still remain the same. यहाँ पर tan is not defined, so tan of 2n plus 1 pi by 2 is not defined. Okay, and yes, this is it. ये याद रखना, odd multiples of pi by 2, odd multiple of pi by 2 पे cos का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. You can remember this. और sin का वैल्यू will fluctuate and will depend on n. Okay, so sin का वैल्यू will depend on n. Great, I hope that these things are quite clear now. Let us move ahead. Okay, so yes, you can revisit the formula once. Meanwhile I'll just, yes, I'll come over here so that you guys are able to see the formula, view the formula. Okay, so let us see. Okay, so sin of a plus b क्या है, sin a cos b plus cos a sin b. देखो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला मस्ट बी ऑन योर टिप्स. ठीक है, दिस फॉर्मूला मस्ट बी ऑन योर टिप्स. अभी आपके पास अराउंड 30 डेज होंगे एग्जाम को, तो यू कैन मेक अ फॉर्मूला शीट आउट ऑफ दिस. ठीक है, दैट इज व्हाई आई टुक ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज इट इज मोर फॉर्मूला बेस्ड currently. When we are talking about main scenario, it is quite direct and formula based. That is why I am picking the formula based chapters initially, that you can make the formula sheets and you can remember those. That will be very beneficial for you. अगर आपने अभी भी नहीं बनाई है, वैसे तो आपको बना लेनी चाहिए थी, आइडियल सिनेरियो में ये बन जानी चाहिए, पर अगर नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अभी भी बना लो तो फायदा होगा. एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवाइज करोगे तो दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लो, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी देखते हैं. तो ये हम लिख देते हैं वापस. ये मैं बहुत बार लिखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है अपने आप. ठीक है, आई कैन डू इट वॉलेंटरली. रात को आप मुझे 3 बजे भी उठा के ये सवाल पूछोगे कि भाई cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सही से बता दूंगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है. ठीक है, वैसे नहीं, आपको नहीं पूछना चाहिए, मैनर्स होते हैं कुछ, पर कोई बात नहीं, चलो अगर पूछ भी लोगे तो वैसे सही है. ठीक है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो. ठीक है, वैसे गड़बड़ हो जाती है ना, साइन बी cos a, मैं मतलब भावनाओं में बह गए, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो ठीक है, तो दैट वाज जस्ट इंटेंशनल, यू कैन कॉल इट इंटेंशनल. मतलब इंडियन टीचर्स का आपको पता ही है कि इंटेंशनल बोल देते हैं. ठीक है, कि ये तो आप लोगों को चेक करने के लिए बोला था. ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, बट यू डोंट नीड टू वरी. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ. ओके, कॉट वाले याद रख लेना. ठीक है, ऐसा है कि बहुत सारे लोग, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि कॉट वाले फॉर्मूले याद मत रखना. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती. बट यस, इस साल हमने मेंस में काफी कुछ देखा है कि मतलब बहुत लेंदी पेपर आ रहा है, तो ऐसे में एक दो फॉर्मूले अगर एक्स्ट्रा याद रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैं इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ. कॉट ए प्लस माइनस बी है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ tan a प्लस माइनस बी होगा. तो बस मतलब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप बस सिंपली कुछ नहीं करना है आपको जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह माइनस प्लस, ये देखो यहाँ वाला रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये दोनों इंटरचेंज कर दो. ठीक है, अब यहाँ पर कॉट ए कॉट बी लगा दो. ठीक है, यहाँ पर 1 लगा दो. अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले तो. ठीक है, हाँ दिख रहा होगा तो बढ़िया है. तो कॉट ए कॉट बी लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, और यहाँ पर हम बस कॉट बी लिख दो और यहाँ एक जगह कॉट ए लिख दो. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर देखो ये दोनों चेंज हो गए. कैसे आता है फॉर्मूला, इसको डिवाइड कर दो. रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 माइनस प्लस, देखो 1 माइनस प्लस tan ए tan बी अपॉन tan ए प्लस माइनस tan बी. मैं लिख देता हूँ यार, लिख देता हूँ भाई, लिखने की जरूरत पड़ रही है मुझे. क्यों पड़ रही है,
नहीं पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लिए ना यार बस, ठीक है, मैं 3 बार लिख दूंगा, 100 बार लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पर हम कॉट लिख रहे हैं, तो कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम कॉट ए प्लस माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस माइनस टेन बी आ जाता है। अब ऐसा करो, हर टर्म को टेन ए टेन बी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 अपॉन यहाँ पर बन जाएगा कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। इस तरीके से आता है, इसको याद रख लेना, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये याद होने चाहिए यार, नहीं इनमें तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो यहाँ से बनाना पड़ेगा, बनाओगे तो टाइम लगेगा यार, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। अगर एग्जाम में बनाने बैठ जाओगे तो यार दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आपके पास इतना टाइम हो, पर मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब के लेंथी पेपर बना रहा है एनटीए कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो साइन ए कॉस भी बनाना है तो 2 साइन ए कॉस भी बनाना है तो ऐड कर लो, 2 कॉस ए साइन भी बनाना है तो आप ऐसा कर लो, इसको बी माइनस ए करके तो ऐड कर लो, ठीक है, तो और फिर उससे एक नेगेटिव साइन निकाल लो, तो इस तरीके से भी बन सकता है। अब जिसको वो फील नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है तो चिंता की बात नहीं, आप इसको याद रख लो, ठीक है। मैं इतनी डिटेल में जाने का हमें समझ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। तो cos a this and this, these four formula you can remember. Okay, let us move ahead. Okay, just a minute, let us move ahead. Okay, so how about C and D फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये देख लो, ये साइन इंटरचेंज हो गया, तो साइन मैं इन दोनों को ऐसे लिख देता हूँ, 2 साइन यहाँ वाला जो सी प्लस माइनस डी बाई टू कॉस सी माइनस प्लस डी, ओह बाहर चला गया फ्रेम के, टाइम्स कॉस सी माइनस प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यहाँ वाला जो है ये यहाँ पर कॉस में क्या, कॉस में कौन सा एंगल, कॉस में इसका ऑपोजिट जा रहा है, बस ये याद रख लो एक तरह से और बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। ये है, और कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये याद होना चाहिए, और cos c minus cos d के लिए भी you can remember. So these 4 formula you must remember. यहाँ वाला जो ये वाली चीज है इसको आपको स्पेशली याद रखना है कि cos c minus cos d है, तो इसको अपने आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 sin से, आप ऐसा करो, आप नॉर्मली लगाओ, ठीक है, आप नॉर्मली याद रखो, या d माइनस सी वगैरह में पंगे में फंसने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर इस पंगे में फंसोगे तो वैसे ही दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इस पंगे में फंसने का ही नहीं है कि सी प्लस डी में जाना है, सी माइनस डी में जाना है, ठीक है, डी माइनस सी करना, डी प्लस सी, ये इन सब प्रॉब्लम इसमें पढ़ते जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फालतू में आप अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा लोगे, समझ नहीं आएगा डी माइनस सी था सी माइनस डी था। बेस्ट है आप यहाँ पर नॉर्मली फॉर्मूला लिखें और एक नेगेटिव साइन बाहर लगा दें, ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। ओके, तो इसका लॉजिक हल्का फुल्का ताकि याद रख जाओ। देखो cos c माइनस cos d को पॉजिटिव होना है तो cos c को cos d से बड़ा है। अब हमें पता है कि cos होता है डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर सम जनरल इंटरवल। अगर हम बात करें तो जनरली cos का डेरिवेटिव देखें तो माइनस साइन है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं डिक्रीजिंग इंटरवल में ही बात कर रहा हूँ, तो डिक्रीजिंग इंटरवल में ये एंगल हो जाएगा c ग्रेटर देन d, ठीक है। अब जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी ये कैसे हुआ, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, तो पढ़ाई करें। एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं भाई, थोड़े थोड़े करके देखें। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो एनीवेज अब देखो c ग्रेटर देन d है, c लेस देन d है, तो d माइनस सी पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये तो हमने पॉजिटिव अज्यूम कर रखा है। तो इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं, एक बहुत ही वेग तरीका है याद रखने का, बट यस मतलब अगर याद रह जाए चीज तो और क्या ही चाहिए भाई, याद रहना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो यस, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विश टू क्लियर आउट। Okay, so let us move to the next thing. Okay, so the double angle formula, these are quite important in themselves.
तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज टू tan थीटा ओवर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, यू मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट इट, ओके। सो दिस इज टू साइन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा, तो ऐसा करो सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंड थीटा से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा टू साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा टू tan थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आता है वैसे, तो आप इसको भी याद रख सकते हो, इसको याद रखोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, कॉस टू थीटा के लिए आपको बेसिकली याद रखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेजर मेजर चीजें मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है, ताकि आप इनको रिकॉल कर सको। अगर मैं देखो मैं लिखूंगा आप भी साथ साथ लिखिए, ठीक है, आप लिखेंगे आपकी मेमोरी में ये चीजें एडअप होती रहेंगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या टू कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी आपको बनाना है बनाते रहो। और ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कई बार ये काम आ जाता है। और कॉस स्क्वायर थीटा को अपन यहाँ पर अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ओवरऑल अपने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, एक अगर आपको एक पता हो तो सारे बन जाते हैं, बट आपको सारे याद हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, कि आपको मतलब ऐसे कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ही चलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप मतलब जस्ट आपको एक इंस्टिंक्ट आ जाए कि यार जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अचानक से मतलब मुझे इतना फॉर्मूला पता है कि मतलब बेसिक निकाल लूंगा मैं इससे, फॉर्मूला निकाल लूंगा, तो आपको फॉर्मूला में ये चीजें पुट करने में, सोचने में है कि इसका वैल्यू क्या आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और इतना टाइम एग्जाम देता नहीं है। ठीक है, तो अब समझ लो आगे, तो भाई आप लोग खुद समझदार हैं भाई, 12वीं पढ़ चुके हैं, पास हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब क्या ही बोले, आप ये तो समझ ही सकते हो कि मेरा फील क्या है कहने का। तो बस इस चीज का ध्यान रखें। और वन प्लस कॉस टू थीटा का वैल्यू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, यहाँ से आया भैया। ठीक है, और वन माइनस कॉस टू थीटा के लिए भी टू साइन स्क्वायर थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो दो है ना, ये जो दो हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क देम, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू नो दीज थिंग्स यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, यू नो कि टू साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी बड़ी वाली कन्वर्जन भी आप मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मेट में ला सकते हो, and that is the beauty of this subject, that you can do it in multiple ways. But yes, you will obviously get a simpler approach if you try using using multiple approach, multiple formula, and that generate through practice. So but for practice also you must be clear with the theory, that is why we are doing theory, nothing else. Okay, so what about tan theta? So tan theta कहाँ से बनेगा, यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वन माइनस कॉस टू थीटा बाय वन प्लस कॉस टू थीटा से क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा बनते इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर मॉड ले लो। ठीक है, मॉड ले लेना, मॉड ले लेना भाई, मॉड ले लेना, स्क्वायर रूट नहीं, मॉडुलस ले लो भाई, मॉडुलस, मॉड टेन थीटा इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों पा रहे हैं, वो इसी वजह से पा रहे हैं। ये चीज का फर्क पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन है तो एक्स का वैल्यू, सॉरी, अगर हम एक्स वाई को अगर हम एक्स स्क्वायर लिखें तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वाई मॉड एक्स होता है, ऐसा कुछ मतलब होता है ना, बस वो ध्यान रखना। अभी मैं कोई बढ़िया सा एग्जांपल लेना चाह रहा था पर अब याद नहीं आ रहा एग्जांपल, तो चलो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है tan टू थीटा, ऐसे याद रखना, इससे याद रख लेना यार, tan टू थीटा याद रखना बहुत सिंपल है। आपको साइन टू थीटा पता है tan के टर्म में, क्योंकि आपको tan टू थीटा में और tan थीटा में रिलेशन चाहिए, तो बस उसके लिए क्या चाहिए, आपको साइन टू थीटा पता होना चाहिए, कॉस टू थीटा पता होना चाहिए। तो साइन टू थीटा को अपन ने पहले ही याद रखा था, टू tan थीटा ओवर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा में भी आप ये जनरेट कर सकते हो, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आपने ये दोनों जनरेट कर लिए तो इसमें अपन लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan टू थीटा ओवर आ जाएगा टू tan थीटा ओवर वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना, वरना tan ऑफ a प्लस प्लस बी में क्या करना, a को b के बराबर पुट कर देना, और क्या,
या बन जाएगा tan 2 है तो वो बन जाएगा। और ऐसा आप सारे उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब वो है, डायरेक्ट है और याद रखने वाला है। तो भाई अब इस समय तो भाई कॉन्सेप्ट बताने की बात नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल में चलते हैं। ट्रिपल एंगल में क्या है, साइन 3 थीटा याद रखना है या 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें कैसे याद रखना है। देखो 3 थीटा है ना, जैसे 3 थीटा हो गया, 5 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया। 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो 2 sin थीटा cos थीटा। और अगर हम इसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करें तो ये कुछ रूट वगैरह में बनता है टर्म। ठीक है, बट इतने पंगे में पढ़ना ही नहीं है अपने को। अपन इसको cos 2 थीटा से समझेंगे, दैट विल बी मेकिंग थिंग्स मोर क्लियर। ये आप फिलहाल के याद रखें, आप cos 2 थीटा को कंपेयर करेंगे, cos 3 थीटा को कंपेयर करेंगे, और उससे अपन cos 4 थीटा को एक बेसिक सा फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाता है 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, इतनी है। cos 3 थीटा के लिए कितना होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, cos 4 थीटा जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको कॉस ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos² ऑफ 2 थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। तो इससे देखो, अब इस चीज का जब आप स्क्वायर करेंगे, cos 2 cos² थीटा माइनस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप अपने आप इसमें टर्म जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बस दिखा रहा हूँ ताकि एक बार अगर देख लो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos की पावर 4 cos² थीटा, सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही लग रहा है, माइनस 1। अगर ऐसा बनेगा तो ये देखो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ पर +1 बन गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 8 cos की पावर 4 थीटा माइनस 8 cos² थीटा। तो देखो अब याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑड है तो इसकी पावर्स भी ऑड है, cos थीटा की पावर्स भी ऑड है। यहाँ पर इवन था तो इसकी पावर भी इवन थी। और मैक्सिमम पावर क्या है, जितना उसका मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी माने कि कितनी बार वो एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑफ कोर्स वो चीज भाई cos 3 थीटा है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, cos n थीटा हो जाएगा तो nth एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से अगर हम अप्रोच करें इस चीज को तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। और अगर 4 थीटा में देखो तो 4 थीटा में आपको डिग्री 4 मिल रही है, वैसे 5 थीटा में देखेंगे डिग्री 5 मिल रही होगी। और 5 थीटा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आपको डिग्री 5 मिल रही होगी तो आप देखिए एक डिग्री तो 5 की होगी, और अगली टर्म होगी 3 डिग्री की, और अगली टर्म होगी 1 डिग्री की। 4 थीटा है तो 4 थीटा में आपको एक डिग्री मिल रही होगी 4 की, एक 2 की, और एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा होगा। तो यस, आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, 4 डिग्री मिल रहा है और 2 डिग्री मिल रहा है। तो इससे इस अब ये देखो, ये मैं जो ये सब बात कर रहा हूँ ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए अभ्यास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है, जो कि मैंने कराया भी हुआ है। आई थिंक मैंने 2 सेशन में कराया हुआ है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में और एक बहुत ही लंबा जो 2 घंटे वाला सेशन, दोनों में मैंने आई थिंक सेम सवाल ही कराया है। तो अगर वो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई। जितनी भी टेक्नोमेट्री की वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली होंगी ना, सभी की लिंक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस पढ़ने का काम करना है, आज के दिन में आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है भाई। मैथ में खासकर, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो करते ही रहना जो भी करना है, पर मैथ में खासकर आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, अब इसमें क्या है, इसको तो बस डिवाइड कर लो और उससे जनरेट कर लो। ठीक है, जब आप जनरेट कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, फॉर्मूला याद रख लेना बस। पर हाँ, ये जो है ना पर्सपेक्टिव, ये 4 to 0 ये कॉस में चल रहा है, वैसे ही कुछ साइन साइन में भी चलेगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मोर ओवर फंक्शन तो कहीं ना कहीं तक रिजेंबल करते हैं ना अपने आप को, π/2 के आसपास, फिर वो चेंज होता है, तो वो सब रिजेंबलेंस है। और उसी रिजेंबलेंस की वजह से ये चीजें डायरेक्टली इंटर रिलेटेड बनती हैं। और इसी बात का आपको ध्यान रखना है, इसी बात पे सवाल बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एनडीए अभ्यास में भी आया हुआ है सवाल। तो इसीलिए मैंने ये चीज रिकॉल कराई, वरना मतलब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई खास जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि सवाल इजी आ रहे हैं। ठीक है, और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा यार,
कि ध्यान रखना कि जो भी कर रहे हो बहुत ध्यान से करो, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड होगा अगर पेपर, तो सभी के लिए होगा, टाइम सभी का खोटी हो रहा होगा। तो आपको घबराना नहीं है अपनी शिफ्ट, अगर आपकी शिफ्ट आसान आ जाए तो आपको फुकरा भी नहीं बनना है। यू हैव टू बी वेरी काम व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर, ठीक है। इफ यू आर इन रग्ड माइंड, इफ यू आर श्रग्ड अप एंड यू आर नॉट एबल टू, यू वोंट बी एबल टू डू थिंग्स दैट वे दैट यू कैन डू इट, ठीक है। ट्राई टू स्टे काम, ट्राई टू फोकस on what your paper is trying to ask you. That is very important when it comes to a preparation for ITJ, and for because it is 1 month for examination now, it becomes very important that you guys need, because you guys need to focus upon your weak areas as well, okay. Anyways, I'll make a separate video. If you guys need something, you can definitely ask me in the comment section. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. You can ask me at Telegram, you can ask me from various other sources. You can connect with me, okay. I've put all the social links as well. All you need to do is to just give an effort, okay. That is very important. If you don't give your effort, then all this exercise that I'm doing, this is a futile exercise otherwise, okay. Leave it and let us move ahead. तो ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, ये मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मतलब ऑफ कोर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है चीजें कि अगर सवाल बनेगा तभी इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, इस पर मैंने कहीं सवाल देखा है ऐसा, मतलब याद सा आ रहा है, तो इसको याद रख ही लो मेरे हिसाब से। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी कोई मतलब बड़ा फॉर्मूला नहीं है, अगर आप नोट बनाएंगे और इसको डेली बेसिस पे अभी से भी रिवाइज करना शुरू करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके। नाउ व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b प्लस c? ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या ऐसे भी किसी सोर्स से पढ़ा है जहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है अच्छे से, तो आपको ऐसी चीज़ें पता होगी, क्योंकि ये चीज़ एन एंगल्स के लिए कैसे लगती है ये आप लोगों को याद होगा। मैंने ओके, आई हैवंट कवर्ड इट इन दिस, आई जस्ट रिकॉल इट फॉर एन एंगल्स। सो अगर हम θ1 θ2 और θ3 ऐसे करते करते अपन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, लेट्स से हम एन एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, तो दैट विल बी S1 माइनस S3 प्लस S5। देखो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म चल रही होगी, कहाँ तक, जब हमारे पास अगर n ऑड है तो ऐसे चलेगी, और n इवन है तो n माइनस 1 तक चलेगी, ठीक है। अगर n इवन है तो 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगी, Sn माइनस 1 तक या Sn तक। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 थीटा पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि tan 3 थीटा है, तो हमारे पास S1 यानी कि सम ऑफ, जैसे सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम होता है, तो दे आर टेकन 1 एट अ टाइम, माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो 3 ही का ही एक पेयर ही बनेगा, तो एक पेयर को एक ही बार ऐड करेंगे ना, तो इस तरीके से आ गया। और 1 माइनस 2 एट अ टाइम, तो tan है, tan भी tan सी tan है। अब ये चीज आप tan ऑफ a प्लस b पे भी अप्लाई करके देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो इसमें S3 तो आएगा ही नहीं, वो वाली टर्म जीरो होगी, क्योंकि आप तीसरा एंगल जीरो ले रहे हो, ठीक है। और 1 माइनस S2 आ रहा है, तो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b सेटिस्फाइड, ठीक है। यू गाइस नीड टू रिमेंबर दीज, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, okay. Next is sum of series for angles in AP, okay, let us continue with that. So this is sin alpha plus beta, angles are in AP, तो sin alpha plus beta, ठीक है, प्लस so on up to sin of alpha plus n minus 1 बीटा। अब ये याद कैसे रखना है, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा, नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो आप ऐसा करो साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ बीटा बाय 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये कॉमन टर्म रहेगा। और बाकी आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दिस इज 2 अल्फा, मतलब मीन ऑफ दीज टर्म्स आ गया ना। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा टर्म है, ये एक तरह से ऐसा टर्म है जो हम एक
एवरेज मीडियन टाइप ऐसा कुछ टर्म है जिससे जिससे हम एक बार अगर एंगल्स के मीन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही सम मिल जाएगा। तो ये मतलब एक प्रॉपर्टी है, मैंने नहीं बनाई है, तो आप इसे प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, बट दैट इज ऑफ नो यूज, यू मस्ट जस्ट रिमेंबर इट राइट नाउ, दैट इज मच important if you guys remember this thing now. Okay, so this is one of the things. Another thing that cos alpha plus cos of alpha plus beta, तो इसमें भी आप यही करोगे कि देखो ये वाली टर्म सेम है दोनों में, साइन ऑफ एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू, ये एज इट इज रह रहा है। और आपने क्या करना है अल्फा, और तो आप इसे ऐसे लिख लो, मैं इस बार ऐसे लिख लेता हूँ, तो cos ऑफ टू अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। तो इसने ऐसे तरह लिखा है, मैं इतना सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मैं सीधा लिखूंगा भाई, मीन लिखना आसान है, ठीक है। तो एग्जांपल कर लेते हैं, तो cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 प्लस cos 40 प्लस cos 50 कर लेते हैं, चलो पांच इनका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कितनी टर्म है, पांच, सॉरी यहाँ पर कितनी टर्म है, एन टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 आई गेस, तो यहाँ पर एन का वैल्यू अपन का 5 आ जाएगा, या राइट इन, तो एन का वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है। ए का अल्फा का वैल्यू कितना है, ठीक है, अल्फा सॉरी अल्फा का वैल्यू है 10, और अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ दिस बीटा, बीटा हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो बीटा का वैल्यू भी अपने पास 10 दिया गया है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 4 बीटा का वैल्यू 50 हो गया, तो इन दोनों का मीन कितना हो गया, 30 हो गया, सॉरी इन दोनों का मीन हो गया 30 और डिवाइडेड, हाँ 30 हो गया, अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बीटा बाई टू, इसका वैल्यू 30 हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ये आ गया साइन ऑफ 25 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ 5, साइन ऑफ 5 साइन ऑफ बीटा बाई टू, ये हमारे पास टर्म आ गया टाइम्स, अच्छा कॉस वाला है तो कॉस का फंक्शन एज इट इज रहेगा, और ये वाला वैल्यू तो 30 है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 साइन 25 बाय साइन 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी को इतनी फुर्सत हो और बेलिया हो तो आप इन दोनों का CND करो, इन दोनों का CND करो, फिर इधर से कॉस वाली टर्म्स में CND करो, मतलब नहीं ऐसा करना, इसको और इसको लेना CND में, और फिर इसको और इसको लेना, फिर कॉमन लेके फिर इसका बनेगा कुछ ऐसा, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली बन के आएगा, और डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट मैंने आपको एक अप्रोच बता दी कि फॉर्मूला कैसे लगना है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एडवांस के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, मतलब मैं कहूँगा कि एडवांस के लिए जो बुनियाद रहती है, जिस सवाल के आने की बहुत आशंका रहती है, ठीक है, मतलब वो रहता है मन में कि यार ये सवाल तो आना चाहिए, ठीक है, वो है, तो बस इन दोनों को याद रखिए। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, द ब्लंडर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक, आई जस्ट रिकॉल, तो आप मन में इसका आंसर बताओ, और बहुत सारे जनों का आंसर होगा ये, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज tan 3 थीटा, जो कि सही है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए भैया, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुटाई कर दूंगा, ई कुटाई होगी अगर आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है, ये दोनों याद है और यहाँ पर गलती कर लो। अबे साइन अपॉन कॉस tan बना, साइन अपॉन कॉस tan बना, साइन अपॉन कॉस tan बना, तो यहाँ पर तुम्हारा 4 कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। बस मेरी इसी भाषा को याद रखे, ठीक है, ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है, ठीक है। तो चलो इसी मामले में अपन आगे बढ़ते हैं, और इसकी थ्योरी आगे कंप्लीट हो गई है मेरे हिसाब से, ये सब फंक्शन डोमेन, तो मैं ग्राफ वगैरह तो मैं चाहता हूँ कि बनाओ कि नहीं बनाओ, मेरे को सोचना पड़ेगा। देखो वैसे तो डोमेन रेंज याद रखो, तो मैं हल्का फुल्का ग्राफ बना देता हूँ इधर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सभी को पता है, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, इवन फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, 2 पाई पीरियड है, tan भी पीरियोडिक होता है पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो जैसे यहाँ वाला क्या हो गया, π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर अपना 3π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, हमने देखा nπ पे 0 है, तो यस जब ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे तो nπ, ये सब आप वैसे बुक्स वगैरह से देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा,
मैं बनाऊंगा ऐसे खिचड़ी बनाऊंगा मैं फालतू में, इस समय कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। तो फॉर ग्राफ्स आई वुड लाइक यू टू रेफर टू बुक्स, ठीक है। इनफैक्ट अभी अगर बुक ली हुई है तो उसको पॉज करके वीडियो को देख लो, और एक बार देखोगे, अभी देख लोगे तो फायदा रहेगा। पेंड करोगे चीजों को तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। देयर आर प्रोबेबिलिटीज, okay. Yes, this is a very important thing, that sum of interior angles of n sided polygon is n minus 2 times pi. इसका सवाल डायरेक्टली तो मतलब बहुत रेयर आएगा, बट इनडायरेक्टली काफी बार पूछ लेता है, ठीक है। मान लो आपको एक पेंटागन दिया है और उसी में आपको इस एंगल, अगर ये आपके पास थीटा दिया गया, एक रेगुलर पेंटागन है, तो आपको लेट से साइन टू थीटा का वैल्यू निकालना होगा, या ऐसा कुछ मतलब पूछ सकता है, ठीक है। तो पेंटागन में होती है 5 साइड्स, तो 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई हो जाएगी रेगुलर साइड की सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दैट विल बी 3 पाई। 3 पाई का मतलब कितना हो गया कि 3 इंटू 185 40 डिग्री। अब दैट इज इक्वल टू 5 थीटा, ठीक है। ये थीटा लेट्स से 5 थीटा ही पूछा, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा, तो 5 थीटा, तो आपको साइन ऑफ 540 का वैल्यू बताना होगा, या मतलब कुछ भी ऐसा सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करें, मैंने रिमेम्बर इसीलिए लिख दिया है, ताकि मतलब आप लोग ये चीज़ें रिकॉल कर सके। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है। याद कैसे रखना है, आप 3 के लिए देखो तो 3 के लिए 180 डिग्री आ रहा है, 4 के लिए देखो तो कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 5 के लिए देखोगे तो वैसे तो 5 के लिए देखो 540 आ रहा है, 6 के लिए देखोगे तो 6 के लिए देखोगे तो 180 और ऐड हो रहा होगा, तो 180 एक तो ऐड कर सकते हो, तो उससे एक रिलेशन देख लो कि 3 के लिए ये इतना आ रहा है, 4 के लिए इतना आ रहा है, तो n के लिए कितना आ रहा होगा। एक ये तरीका है, और दूसरा डायरेक्टली देख सकते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू, ओके। चलो भाई, हमारा हो गया है एक टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, वो हो गया तैयार। उसकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखो सबसे पहली बात की ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो वाले जो चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत कम आ रही हैं, मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो सवाल हैं वो बहुत ही कम है कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो और देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्हें जहां पूछना है वो या तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में डाल दे रहे हैं या इंटीग्रल कैलकुलस में डाल दे रहे हैं। तभी तो बोलते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस आता ही तभी है जब आपको यह आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो दिया है, अब आपको क्या काम करना है कि रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, और फॉर्मूले आपको कैसे पता होंगे भाई, फॉर्मूले आपको तभी पता होंगे ना कि जब आप इसे पेज पे लिखेंगे, 3-4 दिन बार बार पढ़ेंगे, 2 sin a cos b का होता है sin a plus b sin a minus b, ये आपको तभी याद होगा जब आप इसे लिखेंगे। तो आई एम स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन। If you guys would follow this suggestion, this tip, then definitely you guys, nobody will stop you from excelling. That is for sure. Okay. So, in fact, leave it. Let us move to trigonometric identities. This is another very interesting thing we have. So, what about trigonometric identities? तो सबसे पहली बात, जैसा हमने डिस्कस किया था कि साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन पाई, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दिस इज वन ऑफ द जनरल थिंग, तो ये आपको याद होनी चाहिए ना, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाए, 2n+1 पाई बाय 2। tan थीटा इक्वल टू 0, तो इसका क्या सोल्यूशन हो गया, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू n पाई because of this. Okay, great. Now next, this is just a quick review and you must remember alpha is in this. Okay, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है अल्फा हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो रिमेंबर दैट इज व्हाई आई क्लियर्ड दिस over here. This is a mastery, this is a principle, this is the principal range. बेसिकली वो कहाँ से आता है, अल्फा कहाँ से आता है, वो साइन इनवर्स से कुछ से आता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ITF पता होगा तो साइन इनवर्स वगैरह से आता है। तो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, इट इज -π/2 to π/2, तो वो वहां से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल रेंज, और यहाँ पर भी प्रिंसिपल रेंज है,
सभी की। तो प्रिंसिपल रेंज का मतलब होता है कि जो साइन इनवर्स या टी इनवर्स की वैल्यू हो टू बी मोर एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इनके फॉर्मूले देख लो यार। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, मैं लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अल्फा। अच्छा, इनकी डिटेलिंग मैंने कराई हुई है, रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हो, या मतलब डिटेल्ड चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो। क्योंकि इन चैप्टर्स को तो मैंने डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे को। उसके बाद I stopped that series because I didn't think that that is beneficial. I was focused more upon you guys rather than the coming year people. Okay, so these things are very important. Now let us move ahead. Okay, you must remember these formulas. So yes, for solution in all quadrant, I would always recommend that don't remember these. Remember t square theta is equal to t square alpha, implies theta is equal to n pi plus alpha. और इसका मैं बहुत बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि अगर यहाँ पे थीटा है और इसी पे मतलब कहीं ना कहीं कोई अल्फा भी मैच कर गया तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू है, तब भी हमारे पास वो सोल्यूशन में तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल जब हमारे पास सारे सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर अल्फा की बात हो रही है, मतलब कॉस अल्फा अकेले की बात हो रही है एज एन इंडिविजुअल टर्म, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा हो कि यहाँ पर लेट से कॉस अल्फा है और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो स्क्वायर करके तो दोनों ही पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर लिखो और यहाँ कॉस स्क्वायर लिख लो। फिर ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू तो सेम ही आ रही है। तो जब आपके पास वैल्यू सेम आ रही है तो दिक्कत ही क्या है, जब आपके पास वैल्यू सेम है तो आपको चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिल रहा होगा। सो दिस इज द थिंग दैट दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन इन ऑल फोर क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड। बिकॉज यार देखो, जो टी आइडेंटिटीज वाला, सॉरी, जो टी इक्वेशन वाला पार्ट है ना, इससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आज की डेट में इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मतलब अगर आप मेंस के पेपर 2021 के ही उठाओ तो आपको 98% जो सवाल है वो इसी वाले टॉपिक से मिल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूछ ही नहीं रहे, वो उस चीज़ को पूछ रहे हैं, पर कहाँ पूछ रहे हैं, वो उस चीज़ को पूछ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, यस इसमें तो पूछ ही रहे हैं, उसके अलावा कहाँ पूछ रहे हैं, कैलकुलस में पूछ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कहीं और इन्वॉल्व कर देंगे, उसे सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक से लिंक कर देंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ थोड़े ना पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू के है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो फर्स्ट पॉइंट से आपको चेक करना है कि क्या ये रेंज सेटिस्फाई कर रही है। अगर बाई चांस रेंज ही नहीं सेटिस्फाई कर रही होगी तो आपका वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, आप कह दोगे नो सोल्यूशन है अगर रेंज ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना बहुत मतलब देखो ऐसा लिख दिया, लेट से साइन थीटा -2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कौन सा थीटा सेटिस्फाई कर रहा होगा, चार ऑप्शन दिए होंगे। अरे भैया, लोग क्या करेंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, जबकि ये वाली चीज तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। और अच्छा, ऑप्शन में भी साइन इनवर्स 2 लिखा होगा या ऐसा कुछ लिखा होगा, और फिर लोग अपने आप में ही अलग ही कंफ्यूजन चल रहा होगा उधर एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ये चीजें नहीं दिखती, तो मैं इसीलिए रिकॉल करा रहा हूँ कि ये वाली चीज तो हमेशा नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, साइन थीटा का भी 2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। अब इसको भी मैं बता ही देता हूँ यार, कई लोगों को मतलब होगा कि यार कैसे कैसे हो गया ये, आपने बताया नहीं, आप क्या करते रहते हैं, डिसलाइक कर देंगे फिर वीडियो को। ठीक है, तो साइन थीटा -2 का वैल्यू बचेगा -1 और ये -3। अब देख लो यार, ये हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, जीरो आने के लिए बीच में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आने के लिए बीच में जीरो भी तो आएगा, जीरो कभी आया नहीं, तो बस कहानी खत्म हो गई। इसका रेंज ही अब आ गया, तो वो नॉन जीरो है, ऑलवेज नॉन जीरो, क्वाइट क्लियर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ
ठीक है। अवॉइड स्क्वायरिंग ऑफ सोल्यूशन इफ पॉसिबल बिकॉज इट मे लीड टू एक्स्ट्रानियस सोल्यूशन। एक्स्ट्रा सोल्यूशन कहाँ, जैसे अगर आप लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख दो, ठीक है, और आप स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर क्या सोल्यूशन आ सकता था आपके पास, थीटा आपके पास आ सकता था एन पाई या एन पाई प्लस माइनस वन, जो आपके पास एक्चुअल होगा आइडियल सोल्यूशन जो है, आइडियल सोल्यूशन मतलब वो वाला आइडियल सोल्यूशन नहीं। मैं इधर पाई बाय 6 लिख देता हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर पाई बाय 6 लिखूंगा सो दैट दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट योर स्किल। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आना था। तो अगर हम इनमें n का वैल्यू लेट्स से 2 नहीं, कितना डालें, 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 एक सोल्यूशन है। अच्छा 2 डाल देते हैं तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 एक सोल्यूशन है, ठीक है। पर अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमें पता है कि चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आ रहा होगा, तो एक सोल्यूशन पाई प्लस पाई बाय 3 की पाई बाय 6 ऐसा ऐसा कुछ भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैं ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ इस पर। यस ऑफ कोर्स पाई प्लस पाई बाय 6 भी इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। पाई प्लस पाई बाय 6 किसका सोल्यूशन था, इस वाली का। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो आपको चार क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिलेगा। पर अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, दिस डजंट इम्प्लाई कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा, ओ सॉरी ये तो सही है, ये तो सही है, मैं उल्टा कह गया। ओके वन मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। अगर हमें पता है कि ए बी के बराबर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। पर हमें पता है कि 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब अपन स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 है, पर ये -2 के बराबर तो नहीं होगा ना। बस वही लॉजिक है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, दिस डजंट इम्प्लाई दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। और जब आप इसको सॉल्व करने के लिए इधर कहीं स्क्वायर कर रहे होगे तो आपके पास चार, जहां पर इसकी वजह से आपके पास लेट्स से 2 क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आ रहा होगा, पर इसको जब आप स्क्वायर कर दोगे आपके पास 4 क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आएगा, जिसका मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ रहे होंगे। तो इन एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यही एक फाइनल बात रही हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट कैंसल द कॉमन वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम टू साइड ऑफ इक्वेशन विच आर इन प्रोडक्ट बिकॉज वी कैन लूज सम सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा मोटा। तो लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है साइन थीटा माइनस 1 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 3 नहीं, कोई हल्का सा सोल्यूशन लेंगे, और थीटा प्लस हाफ ले लेते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा -2 टाइम्स साइन थीटा -1, या इसको भी हाफ ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब बहुत बाहुबली लोग मैंने देखे हैं जो इसको और इसको काट देते हैं और फिर बोलते हैं कि एग्जाम में तो अपना आंसर गलत आया, अपन ने तो ये सॉल्व किया था, ठीक है। भैया अगर आप साइन थीटा को लेट से 1 डाल दो, ठीक है, तो ये 0 बनेगा, ये वाला टर्म 0 बनेगा। क्या 0 इक्वल टू 0 नहीं होता, होता है ना। तो आपने यहाँ पर एक कॉमन वेरिएबल फैक्टर जो मल्टीप्लीकेशन में था उसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने से क्या हो गया कि आपके पास ये वाला जो सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन सेट दे रहा था, ये सारे ही उड़ गए। अभी इनमें से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा, और जब इनमें से कोई सोल्यूशन आ ही नहीं रहा होगा तो आपका भाई गड़बड़ होगी ना। तो इसी गड़बड़ से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप फैक्टराइज करके रख लीजिए, और फिर इस वाली जो चीज है, ये है ना, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला, इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई विल टेक अ सिंपलर एग्जांपल। इसी एग्जांपल को अगर हम ले लेते हैं, लेट्स से साइन थीटा माइनस हाफ ही ले लो इसको, और इसको आप ले लो कॉस थीटा माइनस हाफ, प्लस हाफ ले लो यार, प्लस हाफ वैसे पता नहीं, लेट्स से सेटिस्फाई, लेट अस सी वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट। आपको क्या करना होता है ऐसे सॉल्यूशंस के लिए, इसको ट्रांसपोज करो इधर, और साइन थीटा -1 को अब कॉमन ले आ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके पास क्या आ जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अरे यार इसको हाफ ही ले लो यार,
अरे यार मैं देखो मैं क्वेश्चन खुद फ्रेम कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं करना कि भाई मतलब तुम लोग भी एग्जाम में करने लग गए खुद के पेपर फ्रेम, तो वो तो पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, अपन ने इसको इधर ले गए तो इसको ऐसे लिख सकते थे। मैंने यहाँ पर एक स्टेप खा लिया है तो मैं वो स्टेप लिख देता हूँ यार। साइन थीटा मैं एक्चुअली बहुत कम वर्क करना चाहता था इस सेशन के लिए खासकर, जस्ट बिकॉज मुझे फायदा नहीं लगता है कि यार मैं सब कुछ चीज़ दोबारा पढ़ाऊँ। ये स्टेप से ये स्टेप बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर माइनस हाफ था और यहाँ पर भी माइनस और माइनस हाफ हो गया तो प्लस हाफ हो गया और ये कैंसिल हो गए। तो ये बताने की वजह से तो मुझे कहीं ज़रूरत लगती नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरी नज़र में हैं। तो भाई देख लो, ठीक है। तो ये अपने पास था, इसको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब अपने पास क्या है, क्वेश्चंस है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस नेक्स्ट। ठीक है, जैसे कोई लोग अगर स्लाइडों में पढ़े तो उनके लिए क्वेश्चंस नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले क्या, बिफोर वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ग्राफ बेसिस पे भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है सॉल्यूशंस के नंबर पे पूछे जा रहे हैं आजकल सवाल। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे ये वाला सवाल है, दिस इज एंटायरली ग्राफ बेस्ड, यू कैन सॉल्व इट जस्ट यूजिंग ग्राफ, and I am just going to solve it using graph. I'm not going, I'll just make a technique. See, तो आप लोग बेसिक टेक्निक से कर सकते हैं खुद, मुझे आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, बिकॉज यू गाइज आर क्वाइट इंटेलिजेंट इन माई assumptions. So what I think is कि मैं आप लोगों को ग्राफ के बेसिस पे करवाऊँ उस सवाल को, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल मेथड से अब नहीं कर सकते यार एग्जाम में, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। बट हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था कि यार देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी करो इस समय, और सिंस अभी आपके पास अराउंड 25 to 30 डेज का टाइम, बहुत ही अच्छा नहीं, अब तो डेट आ गई है ना, तो डेट के हिसाब से अराउंड 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। आप 1 मंथ भी नहीं, आप उसको 20 डेज ले लो, तो 20 डेज के हिसाब से जो भी आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है उसमें आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत ही बुरी वो होने वाली है, आपके लिए भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। तो मेक श्योर दैट यू गिव मॉक टेस्ट, बिकॉज उससे क्या होती है कि स्पीड जनरेट होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम एग्जाम के बारे में आते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब करते हैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, मॉक टेस्ट देना, एग्जाम का एनालिसिस करना, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का, और इसको मिस ना करें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इस सवाल पे। देखो सवाल बहुत ही इजी है। सबसे पहले, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज पॉजिटिव, तो साइन टू थीटा प्लस tan टू थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। मेथड वन क्या होगा, मेथड वन होगा सबसे सिंपल, कि आपने कुछ नहीं करना, इस वाली चीज को फैक्टराइज, इसमें साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा लिख के, या आप जो भी और कुछ मेथड हो आपके दिमाग में उस तरीके से करें, सॉल्व करें। फिर पॉजिटिव, अच्छा फिर फैक्टर बने, अगर दो फैक्टर बने तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दोनों सोल्यूशन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक जिस्ट देता हूँ कि कैसे करेंगे। साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा ग्रेटर देन 0। अब इससे क्या सोल्यूशन आ सकता है अपना, इससे अपन के पास साइन टू थीटा कॉमन आ गया, और यहाँ पर 1 प्लस सीकेंड टू थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया। अब दो नंबर प्रोडक्ट में है और पॉजिटिव है, तो या तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। जब आपके पास ऐसे आएंगे तो आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आएंगे और आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस विल टेक अराउंड 3 मिनट, ठीक है। आई एम सेट 2 to 3 मिनट, और विद अ वेरी वेरी जो बहुत ही तेज आदमी है, ठीक है, दैट he would still require this much time, because solution जज करना मैक्स टू मैक्स, अगर कोई बंदा ग्राफ से भी ट्राई कर रहा होगा तो फॉर डिटरमाइनिंग इंटरवल्स इट विल टेक सम टाइम। नाउ एग्जाम में इतना टाइम इस क्वेश्चन पे देने की जरूरत ही नहीं है कभी। एंड दिस वीडियो, and in these videos I must say, in these revision videos I'll focus more on solving objectively,
because JEE main approach क्या है, objective. I have delivered a lot of concepts in my earlier videos. You must refer to them if you wish to learn the concepts, if you wish to understand them. But yes, there must be some objective practice over the concepts as well, and how to solve a question much faster way. That is very important, because that is what most of the students demand right now when it comes to the final preparation days. We have to look for that as well. So चलिए इसको करते हैं. देखो sin 2 theta plus tan 2 theta, this is greater than 0. Let us try to solve it. I can write this as tan 2 theta is greater than minus sin 2 theta. ठीक है, I have to check for this. Okay, what is my theta? My theta lies in the interval 0 to 2 pi. ठीक है. Now, how to do this? I'll make the graph and I'll show you how this thing works. So yes, let me just make the graph. Okay, let us make this graph. I'm just taking this coordinate system and rest I'll do myself. Okay, I'll find that much more better for me. Yes. Okay, so I'll draw this in. Okay. Sorry. This is a big problem. Yes. Okay. Okay. So I have 0. What I have interval from 0 to 2 pi. So I'll mark pi by 2 pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Right. What I'll do is I'll draw this wala portion in let's say yellow, and this wala portion in I can draw in blue. Okay, so minus sine 2 theta I will draw in blue. So since I have blue selected, so I will just do that once. माइनस साइन 2 थीटा को प्लॉट करने के लिए हमें क्या पता है कि हमें साइन थीटा का मतलब पता है कि दिस विल बी ए स्मूथ ग्राफ पाई बाय 2 पे मैक्सिमा, और रेस्ट दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, सो 0 पे 0 होगा, इधर भी 0 पे 0 होगा. नेगेटिव साइन से इसका मिनिमम वैल्यू आएगा पाई बाय 2 पे, अगर ये माइनस साइन थीटा होता. पर अब यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है, तो इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट विल इंक्रीज, द वेवलेंथ विल डिक्रीज. और मतलब साइन वेव के परस्पेक्टिव में देखें तो पाई बाय 4 पे है. नाउ द मैक्सिमम मिनिमम विल कम एट पाई बाय 4. Okay, so let us just simply do it. It is a quite a flat curve. Okay, I'll just draw it once for your convenience, that you guys must be knowing that how we can draw the graphs. If you don't know it, then you are in deep trouble, I must say. Okay, if you don't know how to draw graphs, how can you give the examination, I must say. I'm sorry to say, but this is very awful if you don't know how to do these things. Okay, now for tan 2 theta, we can simply do it that यहाँ पर हमारे पास कितना पाई बाय 2 पे आता है. जो चीज़ें पाई बाय 2 पे हो रही हैं वो बस उसी के हाफ एंगल पे हो जाएगी, यानी कि पाई बाय 4 पे हो जाएगी. तो एट पाई बाय 4 tan 2 theta will be getting a maximum. So I'll just mark that. Okay, so this is an infinite point. It will tend to infinity when it comes to pi by 4. So this will be approaching infinity. And yes, just after pi by 2, this tan 2 theta will originate from downward direction. So yes, we have to. Okay, I was supposed to draw it in yellow. I'll just draw it in yellow. Okay, yes. So this is our tan 2 theta, and this will approach from down infinity, and this will at pi by 2, what will be its value? Its value will be 0 at pi by 2. Now, one thing, बहुत लोगों को लगता है कि जो नीचे से ग्राफ आ रहा है अगर इसकी सिमेट्री ऐसे देखें तो ऐसे कट कर जाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आने चाहिए थे. पर ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? इसका लॉजिक सुनो. देखो sin 2 थीटा और यहाँ पर हमारे पास है लेट्स से tan 2 थीटा. ठीक है, तो tan 2 थीटा कितना हो गया? sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा. अब cos 2 थीटा, अगर हम cos 2 थीटा की बात करें तो दैट विल बी लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1. और इक्वल टू 1 किस पर्सपेक्टिव में होगा? जब sin 2 थीटा 0 होगा, बिकॉज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू होता है 1.
तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जब ये 1 के बराबर होगा, जब दे विल बी इक्वल व्हेन sin 2 theta is equal to 0, or I must say when the common angle will be 0. In any other situation, this value is a fraction. I must say sin 2 theta upon some fraction. This is obviously greater than sin 2, sorry, this is obviously greater than sin 2 theta. Yes, आप 4/5 डाल के देखें तो ये 5/4 times of sin 2 theta बन जाएगा. So this is a fractional value, and this is of course this will make the entire term greater than the sin 2 theta. तो इसका मतलब for negative values it will be less, for positive values it will be greater. So यहाँ पर देखिए, and we discussed that यहाँ पर हमारे पास multiple इसका 0 हो रहा होगा. I think did I make some mistake? No, I didn't. It's absolutely correct. Okay, so pi/2 पे ये वैल्यू 0 हो रहा होगा, और यहाँ पर ये कट नहीं किए हैं. तो बहुत से लोग जिनको कट लग रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट टेंजेंशियली पास हो रहे होते हैं. ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. दिस इज बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू 1. सो क्लोज टू 1 आपके पास टेंजेंसी टाइप की कंडीशन बन रही होगी. But yes, we are not concerned about that. What I wish to say is that यहाँ पर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, और उसके अलावा टेंजेंट बड़ा हुआ जैसे ही ये यहाँ कहीं पहुंचेगा, ये मैक्सिमम पे वापस पहुंच चुका होगा. और क्योंकि हमें पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये वापस अपने आप को रिपीट करेगा. आप इस इंटरवल को रिपीट करा लें, आप इस इंटरवल को रिपीट करा रहे हैं, इट इज अप टू यू. दिस इज 3π/4. ठीक है, राइट. 3π/4 बन जाएगा, और यहाँ जैसे ये बन जाएगा पाई पे 2π, तो 0, और फिर आगे यहाँ पर कितना आएगा 5π/4. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम टू ड्रॉ दिस ग्राफ सो दैट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ही इजीली बन जाता है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता था दे आर फिनिश्ड. ओके, सो दैट इज क्वाइट गुड फॉर यू गाइज. 2π माइनस कितना होगा, π/4, तो ये हो जाएगा 9π/4, राइट. सॉरी, 7π/4 ये आएगा ऐसे. और फिर इसके आगे तो सब नीचे ये चल रहा है. ठीक है, ऐसे बनेगा ये. जस्ट मोमेंट, लेट मी थिंक कि मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो. ओके, इट सीम्स दैट मैंने कोई गड़बड़ वैसे नहीं करी है. तो चलो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन लिखना. अब हमें क्या देखना था कि ये कब ग्रेटर होगा इससे. तो ये वाली चीज इधर देखें तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू नेगेटिव है, ऑफ कोर्स ग्रेटर है. तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है 0 to π/4, इट इज क्वाइट गुड फॉर अस. अच्छा, नीचे π/4 से π/2 ना बाबा ना. π/4 से π/2 में तो ये वाला वैल्यू बहुत नीचे है, बहुत नेगेटिव है. ये वाला तो फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव है. ठीक है, तो ये तो नहीं है अपना इंटरवल. अच्छा, π/2 से 3π/4 में तो हाँ बिल्कुल सही है. π/2 से 3π/4 भी सही बैठ रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके आगे वाला नहीं बैठ रहा. फिर पाई से आपके पास कितना 5π/4 बैठ रहा है. तो आपको चेक करना आ गया होगा कि यार आपको क्या देखना है कि ये वाला जो येलो वाला ग्राफ है, ये कब कब इस ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर है. जिन जिन इंटरवल में है उनको आपको लिखना है बस. ठीक है, तो बस वही लिखना है इस सवाल में. तो देख लो, 0 से π/4 वाला बैठ रहा है, π/2 से 3π/4 वाला बैठ रहा है. कौन सी ऑप्शन, अच्छा पाई से 5π/4 वाला भी बैठ रहा है. तो बस एक ही ऑप्शन मैच करी थी, बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन से आप देखो, ऑप्शन से भी आप कंफर्म कर सकते थे कि आप इन पे वैल्यूज चेक कर लो, किसी एक वैल्यू जो आपको पता है उस पर चेक कर लो. बट यस, कई बार वैल्यूज चेक करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, अपने आप में ही आपको समझ नहीं आता कौन सी वैल्यू चेक करें भाई. ठीक है, तो उस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहें. तो जस्ट ये एक हमारे पास सवाल था. चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया. अब अपने पास दूसरा सवाल, ये भी देखो वैसा ही सवाल है बिल्कुल. अब आपको क्या देखना है, x + 2 tan x = π/2. तो जब आपको इक्वालिटी चेक करनी है तो और भी इजी हो जाता है. मैं सेम मेथड लगाऊंगा, आप लोग भी पॉज करके ट्राई कर लेना. और इसका वैल्यू आ जाएगा π/2 - x. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि tan x क्योंकि एक सिंपलर ग्राफ है, आप इसको बनाएंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, आप इसे मॉडिफाई करें. ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ करें ग्राफ पे, इसको ड्रॉ करें. तो मैं करता हूँ ड्रॉ. ओके, जस्ट अ मिनट.
हमें 0 से 2 पाई इंटरवल दिया हुआ है, तो 0 पाई 2 पाई, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, ये मैं 10 बना रहा हूँ ना, ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जिसका इंटरसेप्ट है पाई बाय 4 और स्लोप है -2x, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। एक्स इंटरसेप्ट देखो, अगर y 0 हो गया तो x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है, y 0 हो गया तो x का वैल्यू पाई बाय 2 आना चाहिए ना, तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा, एक इधर कहीं, एक इधर कहीं और एक इधर कहीं। कितना इजी है ना, इजी कूल, समझ आ रहा है, ये आंसर मैच कर गया भैया। एक पॉइंट ये आ गया x, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट्स, ठीक है। वहीं इसे सॉल्व पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मुझे तो कोई थॉट ही नहीं आ रहा है यार, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच के अलावा आई डोंट नो इफ यू हैव एनी अदर अप्रोच, but if you have any other approach, please share it with me, because I would like to learn that as well. I would like to understand how that approach develops. Okay, that will be very beneficial for me as well. I would appreciate that. Okay, let us move ahead. This graphical approach is quite easy, you know. अगर आपको ग्राफ आता है ना, आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, विजुलाइज ग्राफ्स, try to use some online graphing tools if you find time. Okay, now this thing you can, there are two ways to do it. One, you can do it using graphs, or you can do it simply, but for this question it is preferred that you use it simply, because this is very easy. I mean, you have multiple approach, of course, as always, but yes, this you can do using cases only, and one or two cases will be sufficient enough. Okay, so first thing, okay, we know that it is 1 by sin x, so we can, so first of all we can write mod of cot x is equal to mod of cot x plus cosec x. Now first case, let us say cot x is positive, and second case we will assume that cot x is negative. Okay, now from where do these intuitions come? These intuitions come directly कि अगर ये greater than equal to 0 है, तो mod जो value है it will open as it is. So cot x is equal to cot x plus cosec x, और यहाँ पर cosec x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसके क्या सोल्यूशन होते हैं, मन में जिन्होंने भी सोल्यूशन बोला है ना, उनको मार पड़ेगी, क्योंकि दिस इज नो सोल्यूशन. cosec x can't be equal to 0. Now let me show you why. First of all, we have covered a lot of things, you know. Okay, cosec x, you can find this range. Its range is -infinity to -1 union 1 to infinity. Secondly, you can understand one thing, that you can understand one very thing, that इसको अपन लिख रहे हैं वन अपॉन साइन एक्स. अच्छा, तो ये वाली चीज जीरो को टेंड भी अगर करती, तो उसके लिए साइन एक्स को इनफाइनाइट होना पड़ता, पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन एक्स तो बाउंडेड है -1 से 1 के बीच में, तो ये वाली चीज कभी जीरो को जा ही नहीं सकती, तो ये वाली चीज कभी हो ही नहीं सकती. सिंपल, नो सोल्यूशन. सेकेंड केस से हमें सोल्यूशन मिल सकता है क्या, तो आंसर इज यस, मिल सकता है. तभी तो पूछा है यार, कुछ तो पूछा है तो कुछ तो होगा ना. तो कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स एक बहुत ही मतलब बेसिक फील होती है कि यार कुछ पूछा है तो कुछ तो होगा ये आंसर. तो ये आ जाएगा -2 कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स. अब चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. तो -2 इज इक्वल टू कोसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स, क्योंकि हमने कॉट एक्स इक्वल टू 0 वाली कंडीशन वैसे ही रिमूव कर दी है, क्योंकि हमें पता है वो हो ही नहीं सकता है. क्योंकि कुछ भी हो जाए, कॉट एक्स 0 होगा तो मॉड ऐसे खुलेगा, इनफैक्ट ऐसे भी खुलेगा तब भी कोसेक एक्स 0 हो जाएगा, तो कॉट एक्स 0 नहीं है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट वाज जस्ट अ कंडीशन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस अपॉन साइन एक्स. अब इसको देखें तो साइन एक्स भी 0 नहीं होगा,
क्योंकि साइन एक्स 0 हो गया तो ये वाली चीज डिफाइंड नहीं है, तो हमें डोमेन डोमेन और डेफिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि sec ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। तो sec ऑफ x इक्वल टू 2 माने cos ऑफ x इक्वल टू 2। अब इसके सोल्यूशन देखो, cos ऑफ x सॉरी इक्वल टू -2 है यार, -2 माइनस, सॉरी माइनस में क्या लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, और पाप हो गया, पाप हो गया यार, पाप हो गया, भगवान माफ करो प्रभु। cos x का वैल्यू -12 आ रहा है, तो cos x का वैल्यू -12 कहाँ आता है? इंटरवल क्या है अपना, 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में कहाँ आता है भाई, देख लो ना, एक इधर आता है, एक इधर आता है। तो ये कितना आ गया, एक तो हो गया π/3, सॉरी 2π/3, और यहाँ से कितना हो गया, पाई प्लस π/3, 4π/3। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि हमने निकाल लिया इसका आंसर, तो 2। चेक करो, 2π/3 पे है, सही है, ये वाली कंडीशन बैठ गई। 4π/3 पे ये वाली चीज cot x तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये cot x पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि वैसे ही हमारे कभी सोल्यूशन नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो को मिस कर जाते हैं लोग और इसका आंसर 2 मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है, और आंसर 1 होना था। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन 2021 मेन एग्जाम, जेईई मेन एग्जाम। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चेक कर लेना, 4π/3 पे cot x पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। बहुत काम होकर पेपर करो, ठीक है, अगर आप मतलब बहुत तेज करोगे, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन कर देना भाई, भाई साहब एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई, इतना इजी पेपर है, बाद में पता चल रहा है 100 नंबर आ रहे हैं, क्या फायदा? बताओ ना, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आराम से, आराम से करोगे तो रैंक बनाओगे यार, ये मैं बता देता हूँ। काम होके करोगे, आराम से नहीं, काम होके करोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, देखो मैं मेजर क्वेश्चंस 2021 के लाया हूँ, एक दो क्वेश्चन खुद के लाया हूँ, मतलब अलग रिसोर्सेज से, तो तैयार रहना उसके लिए भी। बट 2021 अपना मेजर टारगेट रहा है। अच्छा, 3, हाँ, ये आपको याद होना चाहिए कि a cos x प्लस b sin x का जो रेंज होता है, ये इसके बीच में होता है। फॉर डिटेल्स यू कैन रेफर मोस्ट ऑफ माई वीडियोज। ओके, if you need details, of course you won't need it at this point of time। तो इस वाली चीज का क्या रेंज हो गया, इस वाली ये रेंज की बात हो रही है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारे पास रेंज ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x कितना हो गया, तो रेंज ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x कितना हो गया, दैट विल बी माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये जगह 25 5, सो माइनस ऑफ 5 to 5। ठीक है, तो our k plus 1, how many number of integral values can k plus 1 take? So I know that my k plus 1 can be ranging from -5 to 5. So k can range from -6 to 4. So what are the values of k? -6 -5, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे just for your convenience I'm writing -1 है। ये मिस कर जाओगे अगर आप बहुत ज्यादा मतलब तेज चल रहे होंगे। ठीक है, तो 4 1 5 और 6 11, 11 आंसर होगा, 11। ठीक है, बढ़िया, मस्त। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेन का सवाल है। e रेज टू द पावर cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x, ये भी मैंने मुझे लगता है करवाया होगा किसी सीरीज में, बट इनफाइनाइट सीरीज है। देखो हमें क्या पता है कि cos स्क्वायर x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात हमें पता है कि दिस इज अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, एंड ऑफ कोर्स इक्वालिटी क्या होल्ड कर रही होगी, हमारे पास ये इंटरवल है 0 से π/2, तो आई एम डैम श्योर दैट cos 0 तो बन ही नहीं रहा होगा, तो दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 1, तो ये कांस्टेंट जीपी नहीं है। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका, और मॉड आर लेस देन 1 है, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर log 2 भी है, तो उसको मिस ना करें, तो log 2 इधर लिख देते हैं। तो ये log 2 टाइम्स,
Okay, what is this value now? This is a upon 1 minus r. So what does this become? So this becomes e raised to the power log of 2 times, what is this value? Cos square x upon 1 minus cos square. It is cot square x. पता है ना, cos square upon sin square cot square. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा e raised to the power log of 2 raised to the power cot square x. तो our final answer is 2 raised to the power cot square x. ठीक है. So our 2 raised to the power cot square x, जैसे ये वाला सवाल है, this was satisfied in this quadratic. So ये basic quadratic आता होगा आप लोगों को. That is why I picked up this question. So 2 raised to power cot square x, of course sequence series में आना चाहिए. तो this was a good question in that sense. Okay, so t square minus 9t plus 8 equal to 0 इसको satisfy कर रहा है. ठीक है. One thing, first of all, let us go very simple. First of all, what things you must understand, for any quadratic अगर आपके पास sum of coefficients 0 बन रहा है तो 1 उसका एक solution होगा. यस, यहाँ पर बन रहा है 1 प्लस 8 9, 9 माइनस 9 0, सो टी कैन बी 1. और सेकंड रूट जज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हेल्प ले सकते हैं कि सेकंड वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए का वैल्यू, दैट विल बी 8. सो इससे आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे रादर देन फैक्टराइजिंग. दिस इज अ मेथड टू increase your increase your speed. Yes, so these are the two possibilities. Now we know that cot square x को 0 होना पड़ेगा for this thing to happen, and cot square x can't be 0. Why it can't be 0? Because x can't be equal to pi by 2. So this is not possible. What about this? Yes, it is possible when cot square x is equal to 3. Okay, it is quite clear. So what is cot x? It is equal to रूट 3. अब ये मुझे पता कैसे लगा कि यहाँ पर प्लस माइनस भी तो होना चाहिए था, मॉड होना चाहिए था. मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिक्कत ही क्या है, दिक्कत ही नहीं है. जब कोई तो काम ही बढ़िया है. इसका वैल्यू ले लो रूट 3, तो इसका वैल्यू रूट 3 आ गया. तो हमारे पास 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स बना. इसको अपन क्या कहते हैं, हर टर्म को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 कॉट एक्स बन गया. कॉट एक्स का वैल्यू तो अपने को पता है रूट 3 है, सो दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 3. तो इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ. सी ऑप्शन. देख लो, जेई का सवाल है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी, मतलब कुछ भी नहीं. देखने में बहुत मुश्किल है, करोगे इजी लगेगा. चलो जी, ये सवाल जेई का नहीं है पर ये काफी अच्छा सवाल है. मतलब इसमें बस एक थोड़ा सा ट्रिक लग रही है और क्या है, बस मतलब बहुत ही सिंपल है. मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू कितना है बी, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 2 थीटा, कॉस 3 थीटा. अब जिसको कॉस 3 थीटा याद नहीं है वो लाभ खाएगा. ठीक है, कॉस 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 cos थीटा, सॉरी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये याद रखना. याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना फिर डिवाइड कर लेना. ठीक है. अच्छा, cos स्क्वायर थीटा बनाना है तो एक चीज कर सकते हैं अपन कि हमें पता है 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो और इसको 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दो. ये एग्जाम में मैं ऐसे करता, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करूंगा. ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैं ऐसे करूंगा 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको ऐसे करूंगा. ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1. अच्छा, 2 cos 2 थीटा, सॉरी माइनस 1, और 2 थीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा. तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1. Now let us try to find alpha minus beta. Cos of alpha minus beta जनरेट करते हैं. तो हमारे पास देखो दो टर्म cos में, दो टर्म sin में है, तो ऐसा करते हैं इनका प्रोडक्ट लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. चलो, तो उससे क्या बनेगा अपने पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 cos alpha sin alpha, sorry cos beta, and plus 2 sin alpha sin beta.
अब बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो अपने को पता है, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब वो क्वेश्चन ये ऐसे फ्रेम्ड है कि ये दोनों बन रहे हैं तो इन दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा और तो कोई चॉइस नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम करेंगे इधर से, ये इधर आया तो यहाँ पर अपने पास ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इनको पहले ही बना लिया, प्लस ओके प्लस cos square alpha plus sin square alpha 1 cos square beta sin square beta 1, so this is 2, so it's 2 times of cos of alpha minus beta plus 1 a square plus b square. Now what are we supposed to calculate? We are supposed to calculate this. So what is this value? Okay, we don't need to do this, we just need this. So yes, we can write this value as a square plus b square minus 2 minus 1, so this is a square plus b square minus 3, right? So this is a square plus b square minus 3. Yes, B option matches. Quite an easy problem. बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे जनरेट हो रहा है. See, the thing is that in every question what you need to understand is that you have to get into the problems. Problem आपको ऐसे this is not like just silver plated and all that. ठीक है? You have to get into the problem if you wish to solve it. If you don't wish to solve it, it's up to you, of course. But if you wish to solve it, you have to get into the problem. That is the only thing. Okay, let us move ahead. Okay, yes, so we have 2 questions left. So one of them, let us start with this. The value of sine 85, this is a very good question because it is from assertion and reason. Assertion reason type. Okay, let us solve this. The value of sine 85, sine 35, sine 25 is this. तो 3 एंगल साइन में है और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम इसको साइन थीटा लिखें तो ये क्या है, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा और ये वाली चीज है साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ये फील आ गया। तो इसका तो हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है साइन 3 थीटा बाय 4 और साइन थीटा हमारा 25 है तो ये हो गया साइन 75 बाय 4 और साइन 75 का वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये ऐसा होता है cos 75 के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू हो गया √3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 4 8 √2। तो yes, assertion is true. First statement is true, first statement is true, first statement is false, D option rejected. Okay, second statement. Let us think about the second statement first. तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि ये जो है ये cos 3 थीटा बाय 4 बनता है और ये वाली चीज तो कहीं भी cos 3 थीटा बाय 4 है क्या, तो बहुत सारे लोगों को दिखेगा ही नहीं वो, तो वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। बट cos क्यूब थीटा, मेरे बेटा cos क्यूब थीटा बाय 3 बाय 4 cos थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और ये वाली चीज क्या बन गई cos 3 थीटा बाय 4। जब ये बन गई तो आपका जो ये है ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, तो थर्ड भी एलिमिनेटेड। अब बचे 2 धुरंधर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अब यहां पर भी लोग फैल जाएंगे और बोलेंगे कि भैया यहाँ पर अपन ने साइन का फॉर्मूला लगाया, इधर अपन कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट में, कहां से एक्सप्रेशन का रिलेशन एक्सप्लेनेशन बना। मेरा जवाब आप लोगों के लिए यही है कि क्या हम इसे cos 5 लिख सकते हैं। ओके, पहला सवाल क्या हम इसे cos 5 लिख सकते हैं, दूसरा सवाल क्या हम इसे cos 85 नहीं कितना है 65 लिख सकते हैं, और क्या हम इसको cos 55 लिख सकते हैं, 65 नहीं 55 बनेगा, और क्या हम इसको cos 65 लिख सकते हैं। अगर हाँ है इसका जवाब तो ये वाली चीज इसका एक्सप्लेनेशन बन जाती है। I mean, ये नहीं, ये वाली जो चीज है जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इसका एक्सप्लेनेशन बन जाती है। और इट डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। अगर यहाँ वाला जो एग्जामिनर है उसने इसी को चेंज कर दिया, किसी ने देखो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो इसको भी चेंज कर सकते हैं ना, ये वाली चीज भी तो चेंज हो सकती है। इसको पहले ही उन्होंने साइन में कर लिया,
जब उन्होंने इसे पहले ही साइन में कर लिया, आगे तो दिक्कत ही खत्म होगी ना, सॉरी कॉस में कर लिया तो आगे दिक्कत अपने आप खत्म होगी। पर जिसने मेरे जैसे ने डायरेक्ट किया तो वो तो फंस जाएगा। तो ये डायरेक्ट करना इज नॉट अ बैड ओपिनियन, बट यस यू हैव टू जज दैट अगर यहाँ पर ट्रू है तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि कोई चीज ट्रू है, एंड यू हैव टू बी 100% श्योर कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। So for this problem, the correct answer is A and not B, as most of the students must be aware of this fact. Okay, this is one thing, and let us move to the next problem. And this is the final problem of today. This was the first session on this revision series, and this is the final problem of that. So I'm very happy that I was able to complete this chapter in a much shorter time, because I was expecting that this will take a lot of time. But yes, I think that I have done it in at a much faster pace. So anyways, let us first complete and then we'll decide whether we have completed it in a faster pace or not. So this is 1 plus sin x time plus sin square x, तो बहुत ही आसान है कि ये दिख ही रहा है कि भैया ये एक जीपी है, और जीपी है और इनफाइनाइट सम में sin x का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। कांस्टेंट होगी नहीं, कांस्टेंट होगा 1, अगर sin x इक्वल टू 1 हो गया मान लो, अगर कांस्टेंट जीपी बना भी दी तो इनफाइनाइट के लिए सम इनफाइनाइट नहीं होगा, 1 बहुत बार आ रहा है, 1 इनफाइनाइट बार आ रहा है, ठीक है। 1 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। What is indeterminate is 0 into infinity. We'll get into limits. This can be finite in fact. So we'll get into that. We are not governing that, but yes, 1 into infinity is determinate. It is infinity only. So sin x is not equal to 1 for sure, because it is a finite quantity. So sin x is less than 1. Yes, then we have to apply the formula itself. So a upon 1 minus r, that is 1 minus sin x. This value is equal to 4 plus 2 square root of 3. Now let us solve it. So this is 1 upon 4 plus 2 square root of 3 is equal to, और हम इससे 1 माइनस साइन एक्स। एंड हम यहाँ पर देखो अब कैलकुलेशन कैसे आती है, वो प्रैक्टिस से आती है, तो मैं सोच रहा था डायरेक्ट लिख दूं, पर चलो कोई बात नहीं। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही है, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू अब यहाँ से कितना आ गया, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से कितना आ गया यहाँ पर 4 माइनस 1 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब ये अटपटा सा लग तो रहा है देखने में। ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज करके देखते हैं क्या बनता है। तो इसको अपन 4 स्क्वायर 16 माइनस 12 4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बन जाएगा 12। 12 यहाँ से क्या बनेगा, 12 3 to 6 to 8 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 12 अपॉन 4, कितना बन गया, अरे ये तो √3/2 बन गया ना। अरे बहुत बढ़िया, ये तो √3/2 बन गया। तो साइन एक्स का वैल्यू √3/2। अब साइन एक्स का वैल्यू √3/2 कहाँ आएगा, ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी मैच कर गया। अच्छा, अगर कहीं पे π/3 होता तो मल्टी करेक्ट हो जाता और बोनस मिल जाता जेई मेन के हिसाब से, ठीक है। बढ़िया, समझ आ गया। आज तो मजा आ गया यार, तुम लोगों को भी मजा आया होगा आई होप। मुझे तो काफी मजा आया तुम लोगों के साथ बैठ के प्रॉब्लम करने में, और साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस की। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन एंड यू विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज, ठीक है। जैसे जैसे वीडियोस डालता रहूँगा यू विल वॉच देम, एंड डू मेक श्योर गाइस टू सब्सक्राइब। देखिए कितना एफर्ट लग रहा है वीडियो डालने में और वीडियो सब अपलोड वगैरह में। So it would be great if you guys could subscribe and you could help me. Moreover, you can share this with your friends, with the people you think that they need these videos, and this content is really worth it. Okay, for quick revision, fast-paced revision, you can watch it at 1.25 because I was slow at some times, or you can just simply skip forward. It is not a big issue for me. Okay, I don't mind that, but yes, do watch this video because it took a lot of effort for me to just put that. I never just say about it, but yes, I guess that I must say because students don't intend to watch these videos. I don't know why, but it's fine with them.
It's fine. At the end of the day, I'm just working hard, and this will pay off one day. I'm sure that you guys will understand, appreciate, and that's all. I'm not saying anything else. Thank you everyone for watching this video. I hope you had a great time, and stay happy, stay safe, secure your JMain 4, and then we'll meet in the advanced sessions as well. Also, do make sure to subscribe to the link. There is a channel link in description. ASJ video channel. There I post advanced content as well. So I post advanced content on this channel as well. But yes, continuing to that, I must say that currently I'm just working on mains now for this entrance investigation, just because I think कि हम लोगों का मेंस अभी एक महीना है, तो we can work on it before we move to advanced, because the concepts will still remain the same, or only the problem difficulty level would increase. So yes, I guess you guys would be able to enjoy that as well. But you, some people who are just advanced oriented, they must not be devoid of something due to just one channel. Must get proper exposure to multiple channels as well. So that is the only sole reason about it, and I think it is quite sufficient enough. And so thank you everyone for watching this video. I hope you had a great time. Do make sure to hit the like button, subscribe to Entrance Investigation, and press the bell icon for the latest updates. I hope you had a great time, and thank you everyone for watching. Jai Hind and bye.